morning students. Today I am going to discuss circulatory system in heart mania with you. Now if we talk about circulatory system in heart mania, that includes heart, pericardium, and as you know pericardium is the covering of heart. We have blood vessels and then we have blood in heart mania. So if we talk about blood, then blood is slightly reddish and transparent in heart mania. It has colorless plasma, many pigmented and non-pigmented corpuscles, a few colorless amoeboid leukocytes, and leukocytes are nucleated, amoeboid and colorless. Other corpuscles are round and of various size. Some have vacuoles and they may or may not be nucleated. They do not have any pigment, and while others may contain orange, brown or yellowish green pigment. The green pigment is vanadium, which is claimed to be the respiratory pigment, but its oxygen absorbing power is so low that it can't be respiratory. So this is one of the characteristic feature of heart mania, that it is able to extract vanadium from water, and the green pigment which is present inside the blood is basically vanadium. But this green pigment can't be respiratory because oxygen absorbing capacity of vanadium is very low. Ascidians have no capillaries but they have sinuses. Sinuses means they have spaces but they don't have any capillaries. There is no distinction between blood and tissue fluid since they intermingle freely. Now this slide shows the diagram of heart along with its covering, which is pericardium. So when we first talk about heart, then it lies below the right gonad and it is tubular structure, means it is a tube-like structure, and it has a pericardium which is thick non-contractile wall, and heart is about 7 centimeter long and 3 millimeter wide. अब अगर आप यहाँ डायग्राम देखो, लेट मी जस्ट शो इट इन ग्रीन. जो मैं डायग्राम कलर कर रही हूँ, this tube like structure is all heart, and the one which I am coloring with yellow is pericardium. this इस डायग्राम में एक तरफ से पेरिकार्डियम कट ओपन करके आपको हार्ट दिखाया गया है. दिस ऑल इज पेरिकार्डियम. So heart is tubular and it is surrounded by pericardium, and heart is connected to the pericardium at this place, the one which I have shown in red. Fine. So let me just show it again. See, you can see this connection. This connection is where heart is connected to the pericardium. That means this tubular heart is connected to pericardium only at one place. Rest of the places में heart is not attached to the pericardium. Fine. Now heart is closed at both ends and contains colorless pericardial fluid. Pericardium is closed at both ends and contains colorless pericardial fluid having corpuscles similar to those of blood, and its wall is composed of connective tissue having blood sinuses. Means जो pericardium की wall है उसके अंदर you have large amount of blood sinuses. It is internally lined by squamous epithelium. Inside the pericardium is thin-walled tubular contractile heart with striated muscle. तो अगर हम pericardium की बात करें तो pericardium is closed at both the ends. Pericardium दोनों ends पे closed है, thick-walled है और इसके अंदर blood sinuses है. और pericardium के अंदर हमारे पास क्या है? Pericardium is basically covering the heart. And heart is attached along its whole length to the pericardium by thin connective tissue flap. अभी मैंने आपको बताया कि एक thin connective tissue flap से connected है, लेकिन सिर्फ एक position पे throughout the length of the heart. The heart is open at both ends. Heart खुला है दोनों तरफ से, pericardium closed है. अब heart के अंदर we have a pear-shaped body which is present inside the heart, and
एंड पेरिकार्डियम विच रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट। ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी, क्योंकि हमारे अंदर वाल्व्स प्रेजेंट हैं जो कि रेगुलेट करते हैं ब्लड फ्लो को इनसाइड आवर हार्ट। बट इन हर्टमेनिया वी डोंट हैव एनी वाल्व्स। इन हर्टमेनिया वी हैव दिस स्ट्रक्चर विच इज नेम्ड एज अ पियर शेप्ड बॉडी। और ये पियर शेप्ड बॉडी जो है हर्टमेनिया में हार्ट ब्लड के फ्लो कंट्रोल करती है। Now, if you talk about blood vessels, then there are no true blood vessels in most ascidians, but in case of Herdmania, we have well-developed blood vessels. And there are four main blood vessels in case of Herdmania. We have ventral aorta, dorsal aorta, brachiovisceral, and cardiovisceral. I will be talking about all these four vessels in the next slide. In this slide, the only thing you have to remember is that I told you that in pharynx we have stigmata, and stigmata are separated from each other by blood vessels. Like if I choose this green color, then you can see in this diagram this vessel, which is termed as longitudinal vessel. Fine. So this is a longitudinal vessel, and again if I choose a red color, then you can see this transverse vessel, ये जिसको labeling कर रखी है. Fine. Then if I choose blue color, then I will show you interstigmatic vessel. Interstigmatic means the vessel which is present in between two stigmata. And then we have the one I am showing in yellow color is intrastigmatic vessel, this one, the one which is shaded black in this diagram, this. So all these four type of vessel, transverse vessel, intrastigmatic vessel, interstigmatic vessel, and longitudinal vessel, they basically divide the pharynx and gives a pharynx a basket-like appearance. They are present in between the stigmata. Fine. Now the most important part of circulatory system in Herdmania is its blood vessels. अब अगर हम बात करें circulatory system of Herdmania की, then it is very important from examination point of view, और 99% ये एग्जाम में आता ही आता है. And the main difficulty which students face is drawing its diagram. तो मैंने ये थोड़ा सा एफर्ट किया है आपको समझाने के लिए. जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है वो बुक वाली डायग्राम है, ये वाली. दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन इन योर बुक. फाइन. एंड you will find that if you don't color it, if you don't understand it, then it is almost impossible to draw this diagram. But I will try to explain this diagram to you and make sure जब आपको समझ आ जाए, you have to revert back to me with a color diagram. आपने असाइनमेंट में मुझे एक कलर डायग्राम सबमिट करानी है, और इसको बनाना कैसे है उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो चार मेन इम्पॉर्टेंट वेसल्स हैं उनको थोड़ा सा पहले समझ लो. तो पहले मैं येलो कलर सिलेक्ट कर रही हूँ और पहले हम वेंट्रल अयोटा सिलेक्ट करेंगे. अब यहाँ पे जो मैंने डायग्राम लेफ्ट साइड पे दी है, दिस इज़ अ कंबाइंड डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दी फोर वेसल्स. लेकिन जो राइट साइड पे डायग्राम है वो सिर्फ एक वेसल की है. तो पहले आपको क्या करना है, चारों जो इम्पॉर्टेंट वेसल्स हैं उनको इंडिविजुअली ड्रॉ करने की कोशिश करनी है. जैसे मैंने राइट डायग्राम ड्रॉ कर लिया. दिस राइट डायग्राम जिसको मैंने येलो से सर्कल किया है, दिस इज हैविंग ओनली वेंट्रल अयोटा. तो अगर आप देखो इसमें है क्या, हार्ट. हार्ट से ये निकल रहा है वेसल. फाइन. और ये जो वेसल है दिस इज वेंट्रल अयोटा. हार्ट से जो वेसल निकला दिस इज वेंट्रल अयोटा. अब अगर आप ये वाली डायग्राम देखो, इसमें भी हार्ट से ये वेसल निकल रहा है. मैंने कलर सेम रखा है. जो लेफ्ट साइड डायग्राम है और जो राइट साइड डायग्राम है, दोनों में ही वेंट्रल अयोटा इज ऑफ रेड कलर. फाइन. अब ये वेंट्रल अयोटा यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, एंड इट इज मूविंग अप. एक ये ब्रांच जा रही है और एक ये ब्रांच जा रही है. जो ऊपर ब्रांच जा रही है डेट इज टर्म्ड एज इंटीरियर लिम्ब ऑफ वेंट्रल अयोटा, और जो नीचे जा रही है डेट इज नोन एज पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ वेंट्रल अयोटा.
अब आप देखो जो इंटीरियर लिम्ब ऑफ वेंट्रल आयोटा है ये साइफन तक चली गई है, ठीक है, और जो साइफन तक बिल्कुल पहुंच गया है उसको हमने बोला है साइफनल वेसल, फाइन। और साइफनल वेसल के बिल्कुल नीचे यू कैन सी दिस वेसल विच इज टर्म्ड एज टेंटिकुलर वेसल, फाइन। और टेंटिकुलर के नीचे क्या है, सब टेंटिकुलर, ठीक है। और जितने भी जो एंटीरियर लिम्ब है वो आपको नज़र आ रहा है, ये छोटी छोटी रेड वेसल्स जो कि एंटीरियर लिम्ब के साथ कनेक्टेड है, ऑल दीज आर ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल। अभी पिछली साइड में अगर आप रीड करोगे तो उसमें एक लाइन थी कि जो वेंट्रल आयोटा है वो ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल देती है फेरिंग्स को। तो होता क्या है, हार्ट में से ये वेसल्स निकलती हैं वेंट्रल आयोटा और दो में डिवाइड होती हैं, एक ऊपर की तरफ जाता है विच इज टर्म्ड एज इंटीरियर लिम्ब, और जो नीचे की तरफ जाता है इट इज टर्म्ड एज पोस्टीरियर लिम्ब। इंटीरियर लिम्ब रास्ते में इट गिव्स लार्ज नंबर ऑफ वेसल्स विच आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल, और ऊपर की तरफ इट गिव्स साइफनल वेसल्स, और उनके नीचे वी हैव टेंटिकुलर वेसल्स एंड देन वी हैव सब टेंटिकुलर वेसल। अब एक चीज़ और जो आपने देखनी है वो ये कि वेंट्रल एंटीरियर लिम्ब ऑफ वेंट्रल आयोटा तो निकल गया, लेकिन उसके बाद यू कैन सी कि वेंट्रल आयोटा जो है वो आगे तक एक्सटेंड हो रहा है और ये एक और वेसल ये जा रही है साथ में विच इज गोइंग टू द टेस्ट एंड इट इज टर्म्ड एज वेंट्रल टेस्ट वेसल, फाइन। तो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वेसल। तो आपने ऐसे ही करना है, एक एक वेसल आपने लेना है और एक एक वेसल को आपने पहले ड्रॉ करके देखना है, फिर उसके बाद जब, और एक बार में नहीं आएगा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट थ्राइस या 4 बार, तब आपको ये वेसल्स ड्रॉ करने आएंगे। और उसके बाद आपने फिर इन चारों वेसल्स को कंबाइन करके एक जो डायग्राम जो लेफ्ट साइड में दे रखी है, जो फाइनल आप डायग्राम एग्जाम में बनाएंगे कलर डायग्राम, वो आपसे फिर तभी बन पाएगी अगर आप प्रैक्टिस करें। अब अगर मैं लेफ्ट में आपको दिखाऊं, ये देखिए ये वेंट्रल आयोटा था, ठीक है, और ये वेंट्रल आयोटा से ऊपर गया, ये इंटीरियर लिम्ब हो गया और ये पोस्टीरियर लिम्ब हो गया, फाइन। और ये सारे ट्रांसवर्स वेसल जो मैं येलो अभी मार्क कर रही हूँ, फाइन। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई, ये पोस्टीरियर वेसल्स में से भी छोटे छोटे वेसल्स निकल रहे हैं, यू कैन सी हेयर ऑल्सो, ये वाले, इनको भी हम ट्रांसवर्स वेसल्स ही बोलते हैं, फाइन। यहाँ से हमारे पास वेंट्रल टेस्ट वेसल आ गया, ये वाला, ठीक है। तो और एक चीज़ और आपने करनी है, जब भी आपने फाइनल डायग्राम बनानी है, जब आपको सारा चीज़ आ जाएगी तो आपने इनको कलर भी उसी तरह से करना है। जैसे मैंने वेंट्रल आयोटा को अगर मैंने रेड कलर किया है तो वेंट्रल आयोटा से एसोसिएटेड जितने भी वेसल्स हैं उनको भी मैंने रेड कलर से मार्क किया है, या आप तो रेड कलर से लिख सकते हो या उनको सर्कल कर सकते हो, जैसे मैंने लेट मी जस्ट शो यू, जैसे ये है पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ वेंट्रल आयोटा, ये वेंट्रल आयोटा की लेबलिंग के साथ है, मैंने इन सबको रेड कलर किया है। जो जितने भी ये रेड कलर्ड लेबलिंग पार्ट्स हैं दैट मीन्स दे आर पार्ट ऑफ वेंट्रल, फाइन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वेसल यानी डॉर्सल आयोटा। अब अगर आप डायग्राम ऑन द लेफ्ट देखो तो ग्रीन कलर में मैंने जो मार्क किया है वो डॉर्सल आयोटा है। तो अगर हम इसको इंडिविजुअली बनाएं तो डॉर्सल आयोटा बहुत छोटा सा वेसल है एंड इट इज़ नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू दी हार्ट। तो यहाँ पे हमें कोई हार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डॉर्सल आयोटा में आपने क्या बनाना है, एक साइफनल वेसल, फिर उसके बाद वैसे ही टेंटिकुलर, सब टेंटिकुलर और ऐसे ही ट्रांसवर्स वेसल, ठीक है। ट्रांसवर्स वेसल के बाद एक जो आपने एडिशनल यहाँ बनाना है दिस इज न्यूरल वेसल, और ये जो है दिस इज डॉर्सल आयोटा, फाइन। तो डॉर्सल आयोटा बहुत सिंपल है। लेफ्ट अगर डायग्राम आप देखो, ये डॉर्सल आयोटा की लेबलिंग है, इसमें भी लेबलिंग मैंने सारी ग्रीन करी है, ऑल द वेसल्स विच आर एसोसिएटेड विद डॉर्सल आयोटा आर कलर्ड इन ग्रीन। तो ये डॉर्सल आयोटा जा रहा है, ये देखिए, और यहाँ पे ये न्यूरल वेसल है, और ये डॉर्सल आयोटा अगर आप देखें तो ये भी ट्रांसवर्स वेसल है। मतलब एक तरफ हमारे पास वेंट्रल आयोटा के वेसल्स ट्रांसवर्स वेसल है और एक तरफ डॉर्सल आयोटा के हैं। अब अगर आप राइट वाली डायग्राम देखो तो मैंने यहाँ रेड कलर के वेसल्स भी बनाए हैं, ये रेड कलर के वेसल्स जो हैं वो वेंट्रल आयोटा के हैं। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, वेंट्रल आयोटा के जो ट्रांसवर्स वेसल्स हैं और डॉर्सल आयोटा के जो ट्रांसवर्स वेसल्स हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, फाइन।
बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वेसल इज ब्रेंकियोविस्ट्रल वेसल, जो मैंने लेफ्ट साइड की जो डायग्राम है उसमें ब्लू कलर से बनाया है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी स्मॉल वेसल। ये देखिए, ये ब्रेंकियोविस्ट्रल वेसल, ठीक है। ये डॉर्सल अयोटा यहाँ पे एंड हो रहा था, डॉर्सल अयोटा के बाद ये ब्रेंकियोविस्ट्रल शुरू हो गया। अब अगर आप यहाँ देखो, ये डॉर्सल अयोटा, राइट साइड डायग्राम में अगर आप देखो ग्रीन कलर में, दिस वाज डॉर्सल अयोटा, और ये ब्रेंकियोविस्ट्रल शुरू हुआ, और ब्रेंकियोविस्ट्रल ने क्या किया, बस एक इसका लूप है, ऐसे करके ये यू टर्न सा है, एंड इट इज टर्म्ड एज वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल, राइट। और एक ये छोटा वेसल है जिसको हमने राइट ओइसोफेजियल वेसल बोला है, जो कि यहाँ पे है। ये अगर हम लेफ्ट साइड की डायग्राम देखें, ये वाला वेसल, और इसके बाद ये ब्लू कलर में जो आपको वेसल नजर आ रहा है, जिसको मैं अभी येलो से कलर करूँ, सी ये वाला, दिस इज वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल। तो ब्रेंकियोविस्ट्रल इतना सा ही है, बहुत छोटा सा वेसल है, सिर्फ 2 या 3 लेबलिंग है इसमें। तो ये भी आपको अलग से पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चारों वेसल बच्चे आपको अलग से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने राइट डायग्राम में बनाया है। उसके बाद जब एक बार आपको चारों वेसल्स आ जाएंगे अच्छे से, देन यू आर गोइंग टू मेक अ कंबाइंड कलर डायग्राम। Now coming to the last main vessel, that is cardiovisceral, and it is the trickiest, जो सबसे मुश्किल स्टूडेंट्स को लगता है बनाना, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे देन इट इज़ वेरी इजी। अब हमने हार्ट बनाया था, अगर आप राइट कलर डायग्राम देखें तो मैं इसमें थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। सी, ये हमने, अगर ये हार्ट है इसको मैंने एच लिखा है, और ये मैंने वेसल निकाला यहाँ, दिस इज वेंट्रल आयोटा, दिस इज वेंट्रल आयोटा। अब हार्ट की एक साइड से वेंट्रल आयोटा निकल रहा है और दूसरी साइड से हमारे पास क्या निकलेगा, कार्डियोविस्ट्रल, राइट। अब डायग्राम में देखते हैं, ये देखिए मैंने लेबलिंग करी है हार्ट के बाद ये निकला कार्डियोविस्ट्रल, ठीक है। अब कार्डियोविस्ट्रल जैसे ही निकलता है, ये 2 छोटे वेसल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये 2 छोटे वेसल्स कौन से हैं, ओइसोफेजियल टेस्ट एंड राइट हिपैटिक, ठीक है। लेट मी जस्ट रब इट साइड बाय साइड। तो हमारे पास कौन कौन से हैं, ओइसोफेजियल एंड राइट हिपैटिक। उसके बाद यू कैन सी ये वेसल जो है आगे जा रहा है, ठीक है। 2 छोटे वेसल्स आए, हार्ट से जो निकला डेट इज कार्डियोविस्ट्रल, कार्डियोविस्ट्रल आगे गया और इसने 2 छोटे वेसल्स दिए, एंड देन दिस वेसल गो अहेड, और इसके बाद ये 3 में डिवाइड हो रहा है, 1, 2 एंड 3, फाइन। अब ये 3 में जो डिवाइड हो रहा है, जो ये वाला है, ये वाला जो ऊपर है, दिस इज टर्म्ड एज लेफ्ट कोनिडियल, यानी ये लेफ्ट कोनैड को सप्लाई करेगा। जो ऊपर गया इसको हमने बोला, इसको हम बोलेंगे, वी कॉल इट एज मीडियन डॉर्सल वेसल, वी कॉल इट एज मीडियन डॉर्सल। मैंने लेबलिंग नहीं करी है शायद, दिस इज टर्म्ड एज मीडियन डॉर्सल। और जो नीचे आ रहा है ये 2 में फिर डिवाइड हो गया, कैन यू सी, ये लेट मी जस्ट शो इट अगेन, स्लाइटली डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप बार बार ड्रॉ करके देखेंगे, इफ यू प्रैक्टिस अ लॉट देन विल बी क्लियर टू यू। सी, ये मैंने आपको क्या बताया कि कार्डियोविस्ट्रल जो है वो निकला यहाँ से और 2 में डिवाइड हुआ, एंड देन इट गोज एंड फिर 3 में डिवाइड हो गया। अब ये 3 में डिवाइड हो गया है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया लेफ्ट कोनिडियल बन गई, और एक जो है वो मीडियन डॉर्सल वेसल जो ऊपर की तरफ चली गई, और एक जो है वो नीचे की तरफ, ये जिसको मैं अभी येलो से मार्क कर रही हूँ, ये देखिए नीचे तरफ जा रहा है, लेकिन हार्ट को क्रॉस करने से पहले ये फिर 2 में डिवाइड हो गई, कैन यू सी, ये देखिए एक ऐसे सर्कुलर सी चली गई और एक सीधी चली गई। अब ये जो सर्कुलर सी गई है, दिस इज टर्म्ड एज डॉर्सो इंटेस्टाइनल, ठीक है, और जो नीचे आई है दिस इज टर्म्ड एज डॉर्सल टेस्ट वेसल, दैट्स ऑल, इतना ही है इसमें, राइट। तो हमने क्या किया, वी सॉ कि हार्ट की एक साइड से वेंट्रल आयोटा निकल रही है और हार्ट की दूसरी साइड से कार्डियोविस्ट्रल। नाउ दिस कार्डियोविस्ट्रल will then again divide into 3 and it will give out 3 vessels, 1,
is going to gonads and it is termed as left gonadial. The other is going to take a turn and will go below the intestine and it is termed as dorsointestinal, और एक जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है जिसको हमने मीडियन डॉर्सल बोला। अब इसके साथ जो राइट डायग्राम है उसके साथ मैंने एक और डायग्राम ड्रॉ करी है, वो भी कार्डियोविस्ट्रल की है। तो मैं ग्रीन कलर से आपको एक बार दोबारा से शो करती हूँ। सी दिस इज हार्ट, जहाँ मैंने एच लिखा है। अब हार्ट से ये वेसल निकली, ठीक है, और यहाँ पे दो छोटी वेसल्स हैं जिसको हमने क्या बोला था, ओएसोफेजियोटेस्ट एंड राइट हेपेटिक। और फिर उसके बाद ये वेसल ऊपर गई और ये 3 में डिवाइड हो गई, 1 2 एंड 3। फाइन। जो फर्स्ट वाली है जिसको मैंने शेड किया है ब्लैक में, वो फिर 2 में डिवाइड हुई है, एक ये और एक नीचे जा रही है, ठीक है। और ये जो है ये ऐसे कर्व होके गोनैड्स पे चली गई और एक जो है वो ऊपर चली गई। फाइन। तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वेसल अ लॉट, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं। अब अगर हम ये वेसल लेफ्ट वाली डायग्राम में ट्रेस करने की कोशिश करें तो यू कैन सी, मैंने येलो कलर सिलेक्ट किया है, सी दिस वेसल एंड देन यू हैव दिस 2 वेसल्स, स्मॉल वेसल्स, और फिर ये एक ये गई गोनैड्स में और एक ऊपर एंड देन इट इज बाइफर्केटिंग अगेन, और एक ये नीचे चली गई और एक सीधा चली डॉर्सल वेसल। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन ऑलवेज ask me, but try to draw all these 4 vessels first independently and then club them together and make a single diagram. एग्जाम में आपने सिंगल डायग्राम बनानी है, अलग अलग वेसल्स नहीं बनाने हैं। ये अलग अलग वेसल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, पहले आप अलग अलग बना के देखेंगे, उसी के बाद आप कंबाइन कर सकते हैं इसको। Now if you talk about circulation, अभी हमने vessels कर ली, we have seen blood, we have seen heart, we have seen pericardium. Now how this flow of blood inside the heart is controlled? It is basically controlled by 2 जो हार्ट होता है हार्टमेनिया का, that is myogenic. I hope you understand what is myogenic and what is neurogenic. Neurogenic हार्ट में जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन है that is controlled by nerves, लेकिन हमारे अंदर इन ह्यूमंस वी हैव myogenic heart. That means जो wave of excitation है that is initiated inside the heart only. हमारे अंदर पेसमेकर्स होते हैं ना, तो सेम इज केस इन हार्टमेनिया। हार्टमेनिया में भी जो wave of contraction है inside the heart that originates inside the heart only. Fine. तो हार्ट, एक चीज़ जो मैंने पहले भी आपको बताई हार्टमेनिया के हार्ट में डिफरेंट है, वो ये कि हार्टमेनिया के हार्ट में वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते, इंस्टेड वी हैव अ स्मॉल पियर शेप्ड बॉडी। और ये पियर शेप्ड बॉडी क्या करती है, ये पियर शेप्ड बॉडी जो है कंट्रोल करती है ब्लड का फ्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन टू another, like the parallelistic contraction of the heart and a small pear-shaped body within the pericardium passes a wave from one end of the heart to several beats. अभी ये आपको समझ आएगा when I will move on to the next diagram. अच्छा, एक और चीज़ जो हार्टमेनिया में बड़ी यूनिक है that is reversal of flow of blood. अब हमारे अंदर क्या है, we have a unidirectional flow, मतलब ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाएगा और वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि वेंट्रिकल से बैक फ्लो नहीं होता ब्लड का। लेकिन हार्टमेनिया में वी हैव फ्लो ऑफ ब्लड इन बोथ डायरेक्शन, यानी डॉर्सल टू वेंट्रल एज वेल एज वेंट्रल टू डॉर्सल। और जो ब्लड है दैट इज ऑक्सीजनेटेड इन फेरिंग्स में। नेचुरली यू हैव सीन कि फेरिंग्स जो है उसमें स्टिग्मेटा है, स्टिग्मेटा में सीलिया है एंड फेरिंग्स इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड। अभी मैंने आपको बताया ट्रांसवर्स वेसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेसल, इंट्रास्टिग्मेटिक, इंटरस्टिग्मेटिक। तो वो वेसल्स क्या करते हैं, ब्लड को लेके आते हैं फेरिंग्स तक, और फेरिंग्स से पानी में से दिस एनिमल एक्सट्रैक्ट दी ऑक्सीजन। फाइन। अब ये स्लाइड में जो कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन हार्टमेनिया है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको ये सर्कुलेटरी पूछा जाए हार्टमेनिया का, तो 2 थिंग्स विच यू हैव टू ड्रॉ इज नंबर 1 कलर डायग्राम एंड देन यू हैव टू ड्रॉ दिस कोर्स ऑफ सर्कुलेशन।
अब इसको मैं आपको आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट। इसमें दो लाइनें हैं, वन इज सॉलिड लाइन, अदर इज डॉटेड लाइन। फाइन। तो जब आप ये टेबल या ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे तो यू मस्ट हैव टू मेंशन कि सॉलिड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है और डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि इसमें दे रखा है, सॉलिड लाइन शोज द कोर्स ऑफ ब्लड व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम वेंट्रल टू डॉर्सल, व्हेयरएज डॉटेड लाइन इंडिकेट व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल। मैंने अभी आपको बताया कि हार्टमेनिया का जो हार्ट है डेट कैन शो रिवर्सल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब डॉर्सल से वेंट्रल भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और वेंट्रल से डॉर्सल भी। अब अगर आपको डायग्राम थोड़ी सी याद हो, लेट मी जस्ट ट्राई टू ड्रॉ हियर। अगर हम इफ दिस इज हार्टमेनिया का हार्ट, देन दिस इज वेंट्रल आयोटा और यहाँ पे हमारे पास क्या था, कार्डियोविस्ट्रल। फाइन। अब पहले हम देखते हैं, अगर हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल, यानी जो ब्लड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज अबाउट पियर शेप्ड बॉडी। अभी मैंने आपको बताया हार्टमेनिया के हार्ट में वाल्व्स नहीं होते, तो हार्टमेनिया के हार्ट में सेंटर में एक पियर शेप्ड बॉडी होती है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट विद येलो कलर। फाइन। ये स्ट्रक्चर जो है ये मूव करता रहता है, दिस इज अ मूविंग स्ट्रक्चर। अब अगर हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये पियर शेप बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी। दैट मीन्स व्हाट हैपन्स, अगर ब्लड फ्लो कर रहा है फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल, देन दिस पियर शेप स्ट्रक्चर विल मूव टुवर्ड द डॉर्सल। दैट मीन्स इट विल मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। फाइन। तो उससे क्या होगा, बैक फ्लो प्रिवेंट होगा, क्योंकि वाल्व्स तो है नहीं हार्टमेनिया के हार्ट में, तो बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए ये पियर शेप बॉडी एक्ट एज अ वाल्व। फाइन। तो अब अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल, फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल अगर कर रहा है, देन वी हैव टू फॉलो डॉटेड लाइंस। राइट। डॉर्सल ये रहा। अब डॉर्सल से वेंट्रल, डॉर्सल से ब्लड कहाँ जाएगा, ब्रेंकियोविस्ट्रल। आई टोल्ड यू दैट डॉर्सल आयोटा इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द हार्ट, डॉर्सल आयोटा इज कनेक्टेड टू ब्रेंकियोविस्ट्रल। ब्रेंकियोविस्ट्रल से ब्लड कहाँ जाएगा, सारे ऑर्गन्स में, और सारे ऑर्गन्स क्या करेंगे, दे विल send then blood to cardiovistral and then cardiovistral will send it to heart. अब सारे organs जो cardiovistral में blood send करेंगे, obviously it will be deoxygenated. अब heart जो है वो फिर किसको send करेगा, ventral aorta को, and now this ventral aorta will send it to transverse brachial vessel and then transverse brachial vessel जो है that then it will send to brachial sac and test. अब transverse brachial vessels जो हैं they are सप्लाइंग द फेरिंग्स रीजन, और ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल फिर क्या करेंगे, दे विल पास द ब्लड टू ब्रेंकियल टेस्ट और वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगी एंड देन अगेन इट इज कलेक्टेड बाय ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल। अब ये वाले ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल किसके हैं, डॉर्सल आयोटा के। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल डॉर्सल आयोटा के पास भी हैं और वेंट्रल आयोटा के पास भी है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये वाला ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल जो है दे विल पास ऑन द ब्लड टू डॉर्सल आयोटा एंड देन अगेन दिस साइकिल इज रिपीटेड। अब ये वाला साइकिल जो है और ये वाला जो साइकिल, दीज टू आर सेम। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इट्स जस्ट द रिप्रेजेंटेशन। जो लेफ्ट साइड है जिसको मैं नंबर 1 और नंबर 2 मार्क करूँ, ये जो दोनों साइकिल्स हैं दे आर सेम, इट्स जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अभी हमने बोला था कि अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल टू डॉटेड लाइन। अब अगर हम देखें, अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम वेंट्रल टू डॉर्सल, देन वी हैव टू फॉलो द सॉलिड लाइन। वेंट्रल टू डॉर्सल दैट मीन्स जो वेंट्रल आयोटा से ब्लड जो है वो हार्ट में जा रहा है। ठीक है, हार्ट से फिर वो कहाँ जाएगा, हार्ट के साथ जो दूसरा वेसल अटैच्ड है दैट इज कार्डियोविस्ट्रल, कार्डियोविस्ट्रल में जाएगा। अब कार्डियोविस्ट्रल से जो ब्लड जाएगा दैट विल बी गो टू गोनाड्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्डियोविस्ट्रल जो ब्लड सप्लाई करेगा डाइजेस्टिव गोनाड्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, दैट विल बी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, फिर इट विल गो टू ब्रेंकियोविस्ट्रल। अब ब्रेंकियोविस्ट्रल से डॉर्सल आयोटा, डॉर्सल आयोटा के पास जो ब्लड आएगा अब की बार दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और डॉर्सल आयोटा क्या करेगा, इट विल गिव इट टू
ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल और फिर ब्रेंकियल सैक में ऑक्सीजनेशन होगी और फिर ये कहाँ जाएगा, इट विल गो टू ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल। अब ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल से दोबारा वेंट्रल आयोटा, दैट मीन्स जब वेंट्रल टू डॉर्सल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रल आयोटा जो है दैट विल गिव oxygenated blood to heart will give oxygenated blood to cardiovascular will give oxygenated blood to all the organs, and then organ से जो blood collect होगा that will be deoxygenated और वो ब्रेंकियोविस्ट्रल में जाएगा, फिर वो डॉर्सल आयोटा में deoxygenated blood ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल में, और ब्रेंकियल सैक में उस ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी एंड देन इट विल गो टू ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल और फिर दोबारा से वेंट्रल आयोटा के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। इसके रिवर्स अगर हम देखें, अगर हार्ट डॉर्सल टू वेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है देन व्हाट विल हैपन, डॉर्सल आयोटा से ब्रेंकियोविस्ट्रल में जाएगा, उस केस में डॉर्सल आयोटा इज गोइंग टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डॉर्सल आयोटा से ब्रेंकियोविस्ट्रल में, ब्रेंकियोविस्ट्रल इज गोइंग टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गोनाड्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड टेस्ट, और यहाँ से जो ब्लड कार्डियोविस्ट्रल में कलेक्ट होगा नाउ इट विल बी डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। फिर वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से वेंट्रल आयोटा से ट्रांसवर्स ब्रेंकियल वेसल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ट्रांसवर्स वेसल से ब्रेंकियल सैक में उसकी ऑक्सीजनेशन होगी, और ऑक्सीजनेशन के बाद फिर वो दोबारा डॉर्सल आयोटा के पास जाएगा विच विल बी नाउ ऑक्सीजनेटेड।